Hello class. So in this class we are going to study some next functions. Last class we had seen continue of this class. So there are some small concept. उसके बाद जो है there is a main concept called function. Okay. So उसके लिए next class लगेगी. So right now we are trying to finish this small concept. ये actually first year में repeat हुआ है, but still we are going to refresh it. Then we'll go with the next concept, functions. Okay, so now there is a next function called cascading input output. Okay, cascading input output operator. Okay, so in this cascading input output operator, what it does is normally how normally we use this C in C out. Okay, I will write one thing. See here, first I will say C out, enter X. Okay, then I will put it into X value. Then again I will write C out, enter Y. Okay, then I will put it into Y. Okay, this is normal. Okay, normally अगर हमको कुछ वैल्यूज लेना है तो यूजर से ऐसे ही पूछते हैं, दिस इज अ प्रोग्राम टू ऐड टू नंबर्स x and y, suppose example. So first what we'll do, first C out will ask x value, then we'll store it into x, then we'll ask y value and store it into y. Okay, this is a normal. But using this cascading input output, okay, using this operator, इसको हम और short कर सकते हैं. We can make much more shorter. How we can do that? Now see here. What I will do, I will say C out. Okay, enter x and y. Okay, then C in x and y. ये both are same, दोनों की प्रोग्रामिंग मीनिंग सेम है. फर्स्ट यूजर से x पूछ रहे हो, x में स्टोर कर रहे हो, y पूछ रहे हो, y में स्टोर कर रहे हो. यहाँ पर क्या कर रहे हो, यूजर से डायरेक्टली x भी पूछ रहे हो, y भी पूछ रहे हो और x में से दोनों सेम मीनिंग है. लेकिन यहाँ पर लाइंस कम हुए, टाइम सेव हुआ ना. कैस्केडिंग से टाइम सेव हुआ प्रोग्रामिंग का, बिकॉज यहाँ पर 4 लाइन लिखना है, यहाँ पर सिर्फ 2 में ही हो रहा है. यू आर आस्किंग एंटर एक्स वाई एंड सी इन एक्स में डालने एंड वाई में डालने. Okay, this concept is called cascading input output operator. Understanding? So this is cascading input output operator. Okay, which define, like if user want to ask one or more input, okay, he can ask using single C out and single C in. Okay, understanding? Simple concept ये है. And एक अलग अलग पूछा है, we can directly ask into together. Even we can ask more also. C out, enter x and y and z, 2 or more, कितने भी. यहाँ पर फिर x, y, z, so on, जितने भी तुमको पूछना है. So this is a cascading operator. Okay, इससे प्रोग्रामर्स का टाइम बचता है, मेमोरी बचती है. Okay, getting a point. So that's why we use cascading. ये बड़े बड़े प्रोग्राम्स में यूज होता है. Okay, this is a one concept. Now the next concept is, okay, there is a next topic is statements. So this is important and even you had been ये प्रोग्रामिंग में भी किया है तुम लोगों ने, but still will have this. Control statements. Now in control statement we have we have compound statement. Okay, compound statement. What it does, it will
It is a group of states which are separated by semicolon and grouped together in block by using opening of semi block and closing of semi bracket. So what is compound statement is saying? Group of statement which are separated by semicolon and grouped by floor brackets. Example: a is equals to 10, b is equals to 20. Okay, then this one. So compound statement saying that state that which are separated by semicolon. So each statement is separated by semicolon. एक statement है, एक statement है, and so on. Separated by semicolon and grouped together into a block by opening and closing of floor bracket. This is called compound statement. Getting? What is compound statement? Separated by semicolon and grouped by this floor brackets. So this is compound statement. Now in this compound statement, this is 1 marks question, so I am explaining in detail. It's a define compound statement. This you have to explain. Okay. Then next word, next statement. There is 2 more statement. One is control statement and iteration statement. Okay, types of control statement is, first one is selection statement. What is saying? It allows us to select a statement for execution based upon certain conditions. Okay, like if else. Okay, you know this one, right? If else and nested, and the last one is switch. So selection statement is saying that it allows us to select a statement for execution based upon the particular condition. If condition क्यों यूज करते हैं? एक कंडीशन चेक करने. If a is greater than b, then print a. Okay. If and else, if a is greater than b, print this, else print this. Nested if else रहता है ना एक के अंदर एक, उसके लिए स्विच जो है एक स्टेटमेंट्स रहता है स्विच करने के लिए, वो भी देखेंगे हम इन फर्दर. So selection statement मतलब allows us to select a particular statement, okay, for execution. लेकिन execution कहाँ पर? Particular conditions पे. Okay, जैसे for example if condition कैसे करते हैं हम लोग? If a is greater than b, okay, if a is greater than b, then see out a. करेक्ट? इफ a is greater than b, यहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट सेलेक्ट कर रहे हो लेकिन कंडीशन के साथ. इफ a is greater than b, then see out a, मतलब प्रिंट a बोल रहे हो. ओके, अभी यहाँ पर ये इफ कंडीशन होगा. अगर इफ एल्स कंडीशन होता तो यहाँ पर एल्स सी आउट बी.
मीन्स तुम क्या बोल रहे हो, अगर इफ ए इज ग्रेटर देन बी प्रिंट ए, अगर ए ग्रेटर देन बी से नहीं है तो प्रिंट बी। तो ये इफ कंडीशन यहाँ तक है। इफ एल्स, सो बेसिकली आई एम एक्सप्लेनिंग दिस बिकॉज ये एक्चुअली रिवीजन हुआ है फर्स्ट ईयर में तुम्हारे, इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, नेस्टेड एंड स्विच कंडीशन। सो दिस इज कॉल्ड सिलेक्शन स्टेटमेंट। मीन्स क्या, यूजर को परमिशन रहती है एक पर्टिकुलर स्टेटमेंट सिलेक्ट करने के लिए कंडीशन डालने। ओके, सो दिस इज सिलेक्शन स्टेटमेंट्स। सिलेक्शन स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है, इफ आता है, इफ एल्स, नेस्टेड इफ एंड स्विच। ओके, देन सेकेंड टाइप इज, नाउ विल मूव टू सेकेंड टाइप, iteration statement. Now here allow statement to repeat execution until certain condition is satisfied। इसमें कौन कौन सा आता है, while कंडीशन, ओके, do while कंडीशन, देन for कंडीशन। ओके, सो नाउ सिलेक्शन स्टेटमेंट में क्या था, एक कोई भी स्टेटमेंट सेलेक्ट कर सकते हो उसे कंडीशन डाल के, जैसे इफ कंडीशन, इफ एल्स कंडीशन, करेक्ट। नाउ इटरेशन स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, एक स्टेटमेंट को कीप रिपीटिंग एग्जीक्यूशन, वो रिपीट हो सकता है अंटिल एक कंडीशन सेटिस्फाई करने पे। जैसे वाइल लूप कैसे रहता है, लूप मतलब जब तक कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होती तब तक घूमते रहता है। से फॉर एग्जांपल, मुझे 1 से 10 तक नंबर्स मेरे पास है, मैं यूजर से पूछ रहा हूँ एंटर अ नंबर, और उसने 7 एंटर किया, तो मुझे चेक करना जब तक यहाँ पर वाइल से फॉर एग्जांपल ये n इज इक्वल्स टू 1 to 10 है और उसने मैंने x की वैल्यू 7 में स्टोर किया है, तो यहाँ पर वाइल n इज इक्वल टू x, ओके, वाइल n इज इक्वल टू x, सी आउट कुछ भी यहाँ पर मैसेज। दैट मीन्स अभी यहाँ पर वाइल कंडीशन क्या करेगा, पहले 1 पे जाएगा और 7 को कंपेयर करेगा, 1 इज इक्वल टू 7 नहीं, फिर से रिपीट करेगा, 2 पे जाएगा, 2 इज इक्वल टू 7 नहीं, वो फिर से रिपीट करेगा, 3 इज इक्वल टू 7, 4 इज इक्वल टू 7, 5 इज इक्वल टू 7, 6 इज इक्वल टू 7, 7 इज इक्वल टू 7। यहाँ पर कंडीशन सेटिस्फाइड हो रही है तो फिर वो प्रिंट करेगा मैसेज। तो यहाँ पर क्या मतलब है, अलाउ अ स्टेटमेंट टू रिपीट एग्जीक्यूशन अंटिल सर्टेन कंडीशन इज सेटिस्फाइड। एक कंडीशन सेटिस्फाइड करने तक एग्जीक्यूशन रिपीट हो जाएगा। ओके, सो दिस इज इटरेशन। सो कंट्रोल स्टेटमेंट में 2 टाइप के स्टेटमेंट है, सिलेक्शन एंड द इटरेशन, करेक्ट। सो व्हाइल, डू व्हाइल, फॉर, ये 4 कंडीशन हमने यूज किया राइट प्रोग्रामिंग में, 4 कंडीशन हमने प्रोग्राम में एक्सप्लेन किया था, सो दैट इज इटरेशन। ओके, सो नेक्स्ट वन इज, ओके, वी हैड ऑलरेडी स्टडीड, आई विल, क्योंकि लास्ट चैप्टर में हमने स्टडी किया था, आई विल नॉट रिपीट, मैं बोलता हूँ वो क्या है। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज अरेज, ओके, टाइप्स ऑफ अरेज, ओके, उनका डिक्लेरेशन एंड यूज एंड उनके फीचर्स, ठीक है। तो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट जो है अरेज का है, जो ऑलरेडी हमने प्रीवियस यूनिट में पढ़ा था। हमने वी हैड स्टडीड व्हाट इज अरेज, करेक्ट, वी हैड स्टडीड टाइप्स ऑफ अरेज, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। डिक्लेरेशन हमने देखा था, प्रोग्रामिंग में भी हमने ट्राई किया। डिक्लेरेशन कैसे करते हैं, ए ऑफ
10 मीन्स क्या है, अरे नेम विद साइज। डिक्लेरेशन ऐसे ही है, अरे नेम रहता है और उसका साइज रहता है, ओके। और उसको कैसे यूज करता है वो भी हमको मालूम है। देन उनके फीचर्स, ऑपरेशंस, एल्गोरिथम। फिर व्हाट वी सॉ इज नेक्स्ट इज अरेज में हमने क्या क्या देखा था लास्ट टाइम, व्हाट इज अरे, टाइप्स ऑफ अरे, ओके, और डिक्लेरेशन एंड उसको कैसे यूज करते हैं। देन वी सॉ एल्गोरिथम, delete an element from the array, insert an element from the array, करेक्ट। सो आपने एल्गोरिथम भी देखा, उसका प्रोग्राम भी देखा, ओके, ऑपरेशंस भी देखे, करेक्ट। सो ये मैं रिपीट नहीं करूंगा, यू कैन स्टडी, हमने ऑलरेडी पढ़ा है। इफ यू वांट यू कैन स्टडी फ्रॉम द टेक्स्ट बुक, ओके। देन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, द कमिंग कॉन्सेप्ट इज functions, which is very important, okay। that is why मैंने ये क्लास राइट नाउ शॉर्ट की है, इतना ही रखा है, बिकॉज मुझे ये सब खत्म करना था, क्योंकि नेक्स्ट क्लास जब फंक्शन स्टार्ट होगा वो थोड़ा डिटेल में है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। सो नेक्स्ट क्लास हम फंक्शन से स्टार्ट करेंगे। टिल नाउ टुडेज क्लास इतना ही काफ़ी है, ओके। एंड प्लीज मैं आई एम रिक्वेस्टिंग यू ऑल गाइज, ऑल द टीचर्स आर डूइंग हार्ड वर्क टू टीच यू। Don't miss the classes, attend every class। कुछ नहीं समझ में आ रहा, ask your teachers, okay। Don't miss the class, it is for you only, okay। Situations कुछ अलग है, लॉकडाउन है वायरस की वजह से, तो सिचुएशन अलग है, बट यू शुड स्टडी, थोड़ा सीरियस होकर स्टडी करो। कुछ नहीं समझ में आ रहा एंड प्लीज ग्रुप में रिप्लाई किया करो, ओके, इफ यू अटेंडेड और नॉट, इफ यू हैव एनी डाउट्स, ओके। वी आर ट्राइंग टू टीच यू, okay। so for that's it for today। next class थोड़ी बड़ी होगी, लंबी होगी, maybe for 15 minutes or something, because functions है। so till next class you study well and be safe, thank you।